वेलकम दोस्तों, मेरा नाम दर्शन पटेल. आई एम फ्रॉम Tejraj and Company. My WhatsApp number is 9833974700 and my website address is www.tejraj.com. आज मैं आपके लिए लाया हूँ Celestron का AstroMaster 90 Equatorial Refractor Telescope. Let's not waste time. फटाफट इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं, असेंबली करते हैं. खुल जा सिम सिम. ब्राउन बॉक्स से अंदर से निकला है ये कलर बॉक्स. अभी इसे अनबॉक्स करते हैं, इसे खोलते हैं. खुल जा सिम सिम. कलर बॉक्स के अंदर से निकली है इतनी सारी चीजें. लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू वन बाय वन. स्टार्टिंग विद द हाइट एडजस्टेबल स्टेनलेस स्टील ट्राइपॉड. इसमें कुछ असेंबल करने की जरूरत नहीं है, पूरा ट्राइपॉड रेडी साथ में ही आता है विद इट्स leg holders with the mount attached to it. साथ में एक heavy duty equatorial mount. Equatorial mount is very good. It's robust in quality. It's a gray color, nice gray with golden highlight. With a copper color highlights. You get two slow motion gearing shafts. These two slow motion gearing shafts are to move your telescope on a left, right, up, down slow motion axis to continuously track objects in the sky. One red dot finder. You get two counterweights. These counterweights directly lock onto the shaft, which locks onto the equatorial mount for counterbalancing the weight of the telescope. You get two eyepieces with it. They are multi-coated eyepieces. One is a 20 mm eyepiece and the other is a 10 mm multi-coated eyepiece. They are not colossal, they are just multi-coated eyepieces. You get one altitude adjustment screw to elevate the angle of your equatorial mount to your North Star. You get one prism star diagonal. Remember, prism star diagonals, there are two types of diagonals. One is a prism diagonal, one is a mirror star diagonal. Prism star diagonals are used to see the objects in daytime in a correct format. So for example, if your telescope is pointing to a daytime object that says the word Tata, prism star diagonal वो word Tata आपके eyepiece में correct दिखाता है. Mirror star diagonal का क्या काम, क्या उपयोग आता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा accessories पे. साथ में telescope का tube है. This is a complete metal telescope tube with a focuser, red dot finder. फिट करने का इसका ब्रैकेट आता है यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ पे इसका डस्ट कैप. ये आपका 90 mm का लेंस, रिफ्रैक्टर लेंस. दिस इज अ प्लास्टिक लेंस हुड एंड दिस इज अ मेटल टेलीस्कोप ट्यूब बॉडी. साथ में इंस्ट्रक्शन, सेलेस्ट्रॉन की तरफ से इंस्ट्रक्शन मैनुअल और तेजराज कंपनी की तरफ से आपको एक मून मैप, एक स्टार डायल, 110 और 109 के डीप स्पेस कैटलॉग्स आते हैं और एक स्टार एटलस की बुक आती है साथ में. नाउ लेट्स बिगिन विद द असेंबली ऑफ दिस वंडरफुल टेलीस्कोप. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं असेंबली. लेट्स स्टार्ट विद द स्टेनलेस स्टील हाइट एडजस्टेबल ट्राइपॉड. दिस इज अ वेरी रोबस्ट, is a perfect robust high quality stainless steel tripod. You can increase the height to this height or you can decrease it. At this moment we'll decrease it क्योंकि इक्वेटोरियल माउंट लगाने के बाद भी उसका हाइट काफ़ी हो जाएगा. ये लेवल पे रखते हैं. ओके. ये टेलीस्कोप का जो सेटअप पीरियड है, the time it takes to set up this particular telescope and the time it takes to dismantle the telescope is not more than 2 to 3 minutes. कई लोगों को डर लगता है कि इक्वेटोरियल माउंटेड telescopes are very very difficult to use and operate. Please, it is not difficult to use and operate. In fact, equatorial mounts are very very helpful. They are very very useful in night observation. आपको इसमें slow motion tracking मिलता है. Equatorial mount में आपको slow motion tracking मिलता है. You can continuously manually track a planet in the sky. The more robust the equatorial mount, the more firm your telescope is. Shakiness, vibrations, robust telescopes में कम आती है. AZ mounted telescopes में, non-equatorial mounted telescopes में shakiness, vibrations ज़्यादा आते हैं. Now, ये इक्वेटोरियल माउंट लेते हैं, इसको भी सेटअप करते हैं. टेक योर इक्वेटोरियल माउंट. ये जो पार्ट है ये सीधा माउंट है ट्राइपॉड के हेड के ऊपर फिट होता है और यहाँ पे नीचे ऑलरेडी स्क्रू लगा हुआ है. इसको सीधा रोटेट करके लॉक करना है. दैट्स ऑल देयर इज. ये लॉक हो गया. ये जो होल है यहाँ पे आपका ऑल्टीट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू है. दिस इज योर ऑल्टीट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू. ये स्क्रू यहाँ पे फिट होता है. इक्वेटोरियल माउंट को पहले आपके नॉर्थ
साइड नॉर्थ पे पॉइंट करिए, फाइंड आउट वेयर नॉर्थ इज, कंपास डाउनलोड करिए। लेट अस अज्यूम कि मेरा इक्वेटोरियल माउंट, मेरा नॉर्थ ये डायरेक्शन में है। नॉर्थ को ये डायरेक्शन में पॉइंट करने के बाद मुझे अब ये इक्वेटोरियल माउंट को नॉर्थ स्टार पे एलिवेट करना है। वो कैसे एलिवेट करेंगे? ये मेरी तरफ है, जो आपको दिख नहीं रहा है, मेरी तरफ एक रीडिंग है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये मेरी तरफ एक रीडिंग है। अभी अज्यूम करते हैं कि मेरा नॉर्थ का डायरेक्शन चेंज होकर ये बाजू हो गया है, ठीक है। ये मेरा लैटिट्यूड रीडिंग है। इसको मैं ये लैटिट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू को जब मैं अंदर डालता हूँ तो देखिए ये ऊपर आता है। मुंबई का लैटिट्यूड रीजन अराउंड 18 डिग्रीज है। मैं 20 के आसपास लाके उसको छोड़ देता हूँ। ये आ गया अराउंड 18-19 पे आ गया। नाउ द इक्वेटोरियल माउंट इज नॉट ओनली पॉइंटिंग टू माई नॉर्थ बट इट इज नाउ एलिवेटेड टू द नॉर्थ पोल। दिस इज हाउ यू सेट अप एन इक्वेटोरियल माउंट। अब आते हैं इसके स्लो मोशन गियरिंग नॉब्स के पास। स्लो मोशन गियरिंग नॉब्स लीजिए, स्क्रू निकाल, ये स्क्रू खोलिए और अंदर का होल क्लियर कर दीजिए। इक्वेटोरियल माउंट पे देयर आर 2 प्लास्टिक पाइप्स। ये रहा, इसको वापस रोटेट करता हूँ ताकि आपको एंगल्स बराबर दिखे। ये प्लास्टिक पाइप पे यहाँ पे एक स्लॉट है, इसको फील करिए। इसको फील करोगे तो यहाँ पे एक प्लास्टिक स्लॉट, यहाँ पे एक स्लॉट है मेटल पे। ये मेटल स्लॉट में आपका ये स्क्रू लॉक होना चाहिए, परफेक्टली लॉक होना चाहिए। ये मैंने अंदर डाला और ये मैंने स्क्रू ठीक उसी के ऊपर लॉक किया। ओके, मेरा दूसरा स्लो मोशन गियरिंग शाफ्ट, इसको भी खोलिए। मैंने होल क्लियर कर दिया स्क्रू खोल के। और यहाँ पे दूसरा एक स्लॉट है, ये मेटल का पाइप है, यहाँ पे भी मुझे खांचा दिख रहा है। आई कैन फील द स्लॉट, पुट इट इनसाइड एंड लॉक इट प्रॉपर्ली। अभी नाउ लेट अस टेस्ट वेदर द इक्वेटोरियल माउंट, वेदर द शैफ्ट्स आर फंक्शनिंग और नॉट। इन ऑर्डर फॉर यू टू टेस्ट दैट, आरए और डेक एक्सिस को लॉक करिए। ये आपका पहला लॉक, ये आपका दूसरा लॉक। नाउ let's turn the equatorial, the shafts and check whether they are working or not. देखिए ये स्लिप हो रहा है, ये तो बाहर आ गया, बराबर से फिट ही नहीं हुआ ये। इसको वापस अंदर डालिए और शाफ्ट पे लॉक करिए। अभी ट्राई करते हैं। नहीं, अभी भी स्लिप हो रहा है। चलो ये लॉक कर दिया मैंने, अब वापस ट्राई करते हैं। देखिए परफेक्टली घूम रहा है। पहले 2 बार ट्राई किया, दोनों बार स्लिप हुआ। ये आपके साइड, आपके साथ भी ऐसा होगा पहले। अभी ये दूसरा एक्सिस वर्किंग परफेक्टली फाइन। दैट्स इट। अब आते हैं इसके शाफ्ट और काउंटरवेट की तरफ। टेक योर शाफ्ट, ये नीचे का पार्ट खोल दीजिए, ऑरेंज स्क्रू निकाल दीजिए। यहाँ से हम लोग काउंटरवेट को स्लाइडिंग करके फिट करेंगे। पहले ये शाफ्ट को अटैच कर देते हैं। शाफ्ट अटैच हो गया। टेक योर काउंटरवेट, ये होल को क्लियर करिए, ये स्क्रू को नीचे करिए, होल को क्लियर करिए और शाफ्ट को, काउंटरवेट को अंदर डालिए। ये टेलीस्कोप में 2 काउंटरवेट्स आते हैं। दूसरा भी काउंटरवेट लिया मैंने। एक्चुअली मैंने गलत लगाया, इसका शेप ऐसा है, ऐसा है इसका शेप। पहले ऐसा एंड देन द सेकंड वन goes in like this and they match. Okay, this is how it is. अभी before I leave it, make sure कि आप, मैंने जो ऑरेंज कलर का स्क्रू निकाला था वो आप वापस फिट करिए। अगर नहीं किया और अगर आपका ये काउंटरवेट स्लिप होकर नीचे गिरा तो आपका टाइल तोड़ेगा, किसी का पैर तोड़ेगा। इसको लॉक कर दीजिए। अब देखिए, अगर मैं काउंटरवेट का स्क्रू लूज भी करता हूँ ना तो यहाँ पे आपको ये अटक जाता है, यहाँ पे लॉक हो जाता है। ओके, ये आपका shaft ready, counterweights ready. Now we will directly come on to your telescope. Take your telescope tube. Telescope के नीचे already एक orange color का dovetail plate attach किया हुआ है। Take your dovetail plate. shaft को अपनी तरफ रखिए, फोकसर की तरफ, ये गियरिंग shaft को फोकसर की तरफ रखिए। इसको मैंने सीधा यहाँ से स्लाइड इन किया और यहाँ पे साइड पे 2 स्क्रूज है, वो दोनों स्क्रू से लॉक कर दीजिए। ये हो गया आपका इक्वेटोरियल माउंट रेडी विथ योर टेलीस्कोप। कमिंग ऑन टू योर रेड डॉट फाइंडर। टेक योर रेड डॉट फाइंडर, ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट पे सीधा रेड डॉट फाइंडर यहाँ पे स्लाइड इन करिए। अपना स्क्रू ड्राइवर लीजिए और यहाँ पे 2 स्क्रू है, उससे वहाँ पे हल्का सा टाइट कर दीजिए एंड योर रेड डॉट फाइंडर होल्ड्स ऑन टू द ब्रैकेट। ये हो गया आपका रेड डॉट फाइंडर। रेड डॉट फाइंडर के नीचे एक प्लास्टिक का डिस्कनेक्टर है जो बैटरी को एंगेज करेगा। ये मैंने प्लास्टिक निकाल दिया। The battery is now engaged. Red dot finder में एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। There is another screw over here और एक और स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला जो साइड पे एक स्क्रू है और जो नीचे की तरफ एक स्क्रू है, वो रेड डॉट को
लेफ्ट राइट और अप डाउन पॉइंटिंग में हेल्प करता है. इट हेल्प्स यू मूव द रेड डॉट लेफ्ट राइट एंड अप डाउन टू अलाइन योर रेड डॉट फाइंडर विद व्हाटएवर द टेलीस्कोप इज लुकिंग एट. रेड डॉट फाइंडर और टेलीस्कोप को दोनों को अलाइन करना पड़ता है. YouTube पे जाइए, देयर Celestron ने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना के रखे हैं ऑन हाउ टू अलाइन योर रेड डॉट फाइंडर विद योर प्राइमरी टेलीस्कोप. वॉच द वीडियो एंड अलाइन योर रेड डॉट फाइंडर विद द प्राइमरी टेलीस्कोप. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड प्रोसीड फर्दर. हम लोगों ने अभी रेड डॉट फाइंडर फिट किया. अब आते हैं एक्सेसरीज ट्रे पे. ये मेरे को पहले ही फिट कर देना चाहिए था, मैं भूल गया. ये एक्सेसरीज ट्रे है, डायरेक्टली फिट्स ऑन योर लेग होल्डर. एक्सेसरीज ट्रे को यहाँ पे लगाइए और लेग होल्डर पे लॉक हो जाता है. ये a lot of customers that buy these telescopes from other websites, they all come to Tejraj and company asking for spare parts. मेरे पास Celestron के कई सारे कस्टमर इसको ओवरटाइट करके ये पार्ट तोड़ देते हैं. मेरे पास इसका भी स्पेयर पार्ट है. कई कस्टमर ये लेग होल्डर को तोड़ देते हैं. मेरे पास इसका भी स्पेयर पार्ट्स है. हम लोग Celestron के टेलीस्कोप्स को डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं. आई एम अ डायरेक्ट इंपोर्टर. I have spare parts for each and every Celestron telescope or any other brand of telescopes. Contact me on WhatsApp for any spares that you require. Now coming on to the next accessory that has come in the box is a mirror star diagonal. Take your mirror star diagonal. ये आपका फोकसर के जो 2 स्क्रूज है उसको लूज कर दीजिए. फोकसर को प्रिज्म स्टार डायगोनल को अटैच करिए यहाँ पे. Coming on to your eyepieces, you get 2 eyepieces. One is a 20 mm multi-coated eyepiece, not Plossl, multi-coated eyepiece, and the other is a 10 mm multi-coated eyepiece. Directly take your eyepiece and put it on your prism star diagonal, and you are now ready to point, aim and focus from here. This is your focusing mechanism. Whenever you change eyepieces, you need to focus every time. Remember, Celestron के telescopes में 2x Barlow नहीं आता है, especially in the AstroMaster 90mm. You do not get a 2x Barlow. You have to buy an aftermarket 2x Barlow separately. Aftermarket accessory मैं आपको आगे समझाता हूँ. पहले ये complete करते हैं. Telescope का focal length है 900 mm. Starting from here all the way to the eyepiece, the focal length of the telescope is 900 mm. How do we calculate magnification power? 900 mm focal length of the eyepiece, focal length of the telescope, divided by a 20 mm eyepiece. That gives you 45x. And 900 mm divided by a 10 mm eyepiece, that gives you 90x. ये टेलीस्कोप से आपको मैक्सिमम पावर 45 और 90x का ही आ सकता है with what you get in the telescope box. अगर आपको मैग्निफिकेशन पावर दुगना करना है, 90 का 180 करना है, आपको ये बार्लो आफ्टरमार्केट बार्लो खरीदना पड़ेगा. Contact us. It is already listed on our website. We have a range of Barlows from 2x all the way up to 5x, 1.25 inch accessories में. Now let's talk about aftermarket accessories. ये टेलीस्कोप को कैसे enhance कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. Point number 1, let us start with the solar filter. मुझे ये axis लूज करने दीजिए. Axis लूज किया. We at Tejraj and Company custom manufacture solar filters for each and every telescope. This is a solar filter specially designed for the AstroMaster 90mm. ये कैप हम लोगों ने बॉम्बे में डिजाइन किया है at Tejraj and Company, and the sheet is imported. The solar sheet is imported from Thousand Oaks, USA. You can directly buy the solar filter from us. Directly attach it on the top over here, and fix it from the side screws. This is how you install a solar filter on this particular telescope. It's very simple. Solar filter attach करने के बाद you can see sun and sunspots. You can see Mercury-Venus transit, and you can see a solar eclipse with this particular solar filter. Okay, it is 100% safe to see the sun using a solar filter. It is not at all harmful. A lot of parents ask me this question कि क्या is it safe to see the sun? Yes, the answer is it is absolutely safe to see the sun, but you need a solar filter. Solar filter के बिना आपको sun बिल्कुल नहीं देखना है. Coming on to the next accessory is a galaxy eyepiece and a mirror star diagonal. In every refractor telescope, मैंने बार ये stress करके बोला है कि galaxy eyepiece और mirror star diagonal are very two important accessories. ये आपका 20 mm का eyepiece है जो टेलीस्कोप के साथ आया है. इसका लेंस डायमीटर देखिए और सामने इसका लेंस डायमीटर देखिए. दिस इज अ 40 mm
एंड दिस इज अ 20 mm जो टेलीस्कोप के साथ आया है. Aftermarket 40 mm galaxy IP that we have manufactured here in Bombay at Tejraj company. If you want to see galaxies, clusters and nebulae, you will need a solar filter. Sorry, galaxy IPs. Galaxy IPs और mirror star diagonal, ये combination से आपको deep space objects dark sky में दिखते हैं. अभी मैं आपको ये mirror star diagonal और जो साथ में टेलीस्कोप के साथ आए prism star diagonal उसका फर्क समझाता हूँ. Prism star diagonal images को करेक्ट करता है. जब भी लाइट लेंस के अंदर से पास होती है वो लाइट नेचुरली उल्टी हो जाती है. वो लाइट जैसे ही प्रिज्म स्टार डायगोनल के पास आती है, प्रिज्म स्टार डायगोनल वो लाइट को वापस करेक्ट करती है. तब जाके आप अगर कोई दूर का बिलबोर्ड देखो या कोई बर्ड देखो तो आपको बर्ड का पोजीशन करेक्ट दिखाई देता है. समझो कि बिलबोर्ड पे टाटा लिखा है तो आपको टाटा इसमें सही दिखाई देगा. अब ये मिरर स्टार डायगोनल का सरफेस एरिया देखिए और ये प्रिज्म स्टार डायगोनल जो सेलेस्ट्रॉन का है इसका सरफेस एरिया देखिए. मिरर स्टार डायगोनल का सरफेस एरिया काफी वाइड है. इसका लाइट पुशिंग एबिलिटी, लाइट रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी इज फार मोर देन व्हाट यू सी, देन व्हाट यू गेट इन अ प्रिज्म स्टार डायगोनल. इसलिए मैं बार-बार स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, Galaxy IPs works best in conjunction with a mirror star diagonal. Buy these two accessories separately, attach it to your telescope tube. Attach it to your telescope tube. These are universal fittings. Now your telescope is capable of observing galaxies, clusters and nebulas in a dark sky. Not only is the Galaxy IPs designed to show you deep space objects, but it will even help you locate planets and objects in the sky much more faster. How? Galaxy IPs का field of view बहुत wide है. तो जब आप रात के टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हो तो ये वो ऑब्जेक्ट Galaxy IPs के अंदर जल्दी आ सकता है क्योंकि इसका field of view इतना wide है. Galaxy IPs के बाद एक और accessory की बात करूंगा, वो है how to attach a DSLR camera to this particular telescope. In this case, right now to show you, I have a Canon camera. Canon camera के साथ आपको एक Canon T-ring की जरूरत पड़ेगी और Canon T-ring के साथ आपको पड़ेगी जरूरत एक T adapter की. Take your camera, ये आपका T-ring है. T-ring डायरेक्टली कैमरा पे अटैच करिए. ये T-ring अटैच हुआ DSLR कैमरा के ऊपर. Take your T adapter, T adapter लॉक करिए आपके T-ring के ऊपर. ये रेडी हो गया. Directly take your DSLR camera, insert it inside the focuser and you lock it. Now your 90 by 900 mm focal length telescope becomes a telephoto lens for your DSLR camera. You can directly point, aim, observe and start taking photographs with your DSLR camera. You can capture planetary images. You can capture moon surface photographs. You can capture the photograph of the sun using a solar filter. और दूर के land objects like buildings and birds and animals. Last but not the least, we will now show you a cell phone adapter. DSLR कैमरे को निकाल देते हैं. अच्छा सॉरी, एक और चीज, DSLR कैमरे का मैग्निफिकेशन अगर आपको दुगना करना है तो आप यहाँ पे 2x बारलो अटैच कर सकते हो. You can once again buy an aftermarket 2x बारलो with T-thread. यहाँ पे थ्रेडिंग वाले बारलो आते हैं, वो डायरेक्टली आपकी T-ring के ऊपर लॉक हो जाते हैं ऐसे. अब आपका DSLR कैमरा का मैग्निफिकेशन दुगना हो गया, so you can now magnify into planets more and capture them even better. This directly fits inside with the barlow. This is how you attach a DSLR camera. Coming on to your last accessory, suggested accessory, is a cell phone adapter. People who don't have a DSLR camera and want to capture images, they can still do that using their own cell phone. Buy an aftermarket cell phone adapter. This is a high quality metal cell phone adapter, not plastic. The ones that are sold on other websites and other e-commerce online platforms, they're all plastic. This is a metal cell phone adapter. Take your diagonal, आपका जो original diagonal है या तो फिर mirror star diagonal. Insert your mirror star diagonal. नीचे से lock करिए. Take your eyepiece, your 20 mm eyepiece, your original 20 mm Celestron eyepiece. इसका रबर आई कैप ड्रॉप कर दीजिए. ये आपका सेल फोन अडेप्टर, इसको खोलिए. इंसर्ट इट ऑन फ्रॉम द टॉप और यहाँ पे साइड से लॉक करिए. दिस इज हाउ यू अटैच अ सेल फोन अडेप्टर टू द आई पीस. नाउ सेल फोन अडेप्टर का ये जो पार्ट है, ये पूरा ये स्क्रू से खुलता है. इट विल एक्सपैंड एज मच एज यू वांट फॉर योर सेल फोन टू इंसर्ट इनसाइड. एक बार आपका सेल फोन ये ब्रैकेट के अंदर चले जाता है, आपको आपके सेल फोन का जो लेंस है, कैमरा लेंस,
वो आपको आईपीस के ऊपर लाना है। जैसे ही आपका लेंस आईपीस के ऊपर आता है, यू विल स्टार्ट सीइंग अ सर्कुलर इमेज, अ सर्कुलर फॉर्मेशन फील्ड ऑफ व्यू ऑन योर कैमराज, ऑन योर सेल फोन स्क्रीन। एक बार आपका इमेज अंदर आया, यहाँ से फोकस करिए, इमेज को शार्प करिए एंड स्टार्ट कैप्चरिंग इमेजेस। देयर इज अ ट्रिक ऑन हाउ टू कैप्चर इमेजेस यूजिंग योर सेल फोन। जब आप सेल फोन कनेक्ट करके जब आप कैप्चर बटन पे क्लिक करते हो ना, द मोमेंट यू डू दैट, आपका सेल फोन, द मोमेंट यू टच इट, योर सेल फोन विल वाइब्रेट, इट विल शेक। वो शेकीनेस को कट करने के लिए आपके सेल फोन आप जैसे ही कनेक्ट करते हो एंड इफ यू वांट टू कैप्चर एन इमेज, 5 सेकंड का टाइमर सेट करिए। 5 सेकंड के टाइमर से क्या होगा, द मोमेंट आई टच द सेल फोन, वो वाइब्रेशन शुरू होगा। 5 सेकंड के अंदर अंदर वो वाइब्रेशन फेड आउट होकर कैमरा एकदम स्टेबल हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक शटर उसका खुल के इमेज कैप्चर करेगा। दैट्स द बेस्ट वे टू कैप्चर इमेजेस फ्रॉम योर सेल फोन। दैट इज ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। मैंने आपको Celestron AstroMaster 90 का पूरा ब्राउन बॉक्स से लेके कलर बॉक्स से लेके पूरा एक्सेसरीज का स्प्रेड, एक्सेसरीज और ट्राइपॉड और इक्वेटोरियल माउंट को कैसे असेंबल करना है, मैंने आपको वो सब ये वीडियो में समझाया है। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई सवाल जवाब हो, कोई क्वेरीज हो, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833974700। माय वेबसाइट एड्रेस is www.tejraj.com. Feel free to contact us. I hope you guys have liked this video. I will come up with a lot more videos. Follow us and subscribe on this YouTube channel. Thank you very much, dosto. Goodbye.